आपका है ना, के ऊपर अगर उनका ही वीक हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा। गुस्सा करते थे, कुछ नहीं किया मैंने क्या। Your hard work, of course, and the dedication that you put in towards your, towards your students, it is immensely such a feeling of proud. What makes your institute different from others, I'm sure, is that one-to-one touch that you give to every student of yours. And I think that is the success behind. I don't call this a business. I call this it's a service. It's a service that you're doing towards the future generation of leaders who are going to take over the world. So hats off to both of you. And I'm having this vision already that your center, Apti Guide, is going to probably be in every city of India for sure. And who knows, even yes, abroad. You tie up with abroad universities. Never know. Yes. So heartiest congratulations, Priyanka. Thank you. And Anshul. And before we start this, I just wanted to bow down and kind of express our gratitude to all of you who've made this time and effort to be connected with us. बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको जैसे हमने अभी देखा Shruti or somebody else, I think, who's all the way from Canada, connected at 2:30 in the night. That shows that she's trying to basically be with all of us. And I think it is a soul connection that we are going to have today with us. And this is what we need to kind of understand. Why are we here? What was the need? And how it all materialized in a span of just 48 hours. Just 48 hours ago, Anshul just put us in this a dilemma of saying that, why don't you just come and talk to our students? And we are literally not prepared for it. We are not we are not official promoters or speakers or something. We just thought, chalo koi baat nahi, it's just a session we're going to have as a family time together. So let's extend this, it's an extended family, and let's all be chatting about this today. Right? So let me introduce myself, Balraj Kapoor, presently living in UK. I've got 34 years of experience in the hospitality world. Started my career in 1984 from Taj, Bombay in India. And then after that, having worked with Taj, I left for Middle East and spent about 16 years of my life in the Middle East working in various hotels and restaurants and industrial catering or food contract catering companies, So I was one of those lucky hoteliers who got the opportunity to work in different departments of the hotel, restaurant, and the industrial catering business. And then in 2005, me, Riju, and our children, we migrated to UK in London. And we've been working here for the last 11 years in this hospitality world. So 34 years of my hard work in this industry, which I'm very passionate about. बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं industry में by default actually I came in this because my father was also a hotelier और मैं देखता था कि वो जिंदगी में कभी उन्होंने हमारे साथ कोई वक्त नहीं बिताया बेचारों ने, क्योंकि जब वो उठते थे तो हम स्कूल गए होते थे और जब हम उठते थे सोते थे तो वो घर आते थे. So it's a very, very hard working job. No family life, no social life. मैंने कभी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा. All that responsibilities as a father, which I feel very guilty about. वो सब मेरी जो responsibilities थी वो मेरी wife ने बहुत अच्छे से निभाई उसको. And a lot of challenges, of course, in the industry. A lot of pressure, a lot of stress, like any other corporate work or a corporate job. And the only thing, as I said, which used to kind of, make me feel very proud about it is the fact that, which I always share this with all my students and with all my team members, I think, working in the hospitality world, you're doing the most wonderful, it's the most wonderful feeling, एक सेवा की भावना आप कर रहे हैं अपने अंदर, because आप वो जो लोग आपके रेस्टोरेंट्स में आते हैं या होटल्स में आते हैं, आप उनको खाना खिलाते हैं तो कहते हैं कि भूखों को खाना खिलाना सबसे पुण्य का बड़ा काम है, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है उससे. So I think that was that eternal feeling that is to always have with my staff, and everybody used to feel very pumped up with this fact that this is such a beautiful feeling of ours. And yes, pressure था, turbulences आते थे.
और 34 साल में बहुत टर्बुलेंसेस आए, झटके भी बहुत खाए, बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट आई हैड इन मी, द ईगो। जो ईगो, अहंकार होता है इंसान का, उसे कितनी बार वो टर्बुलेंसेस में उसको वो मार खा जाता है उसमें। तो मेरे अंदर भी अहंकार था, गुस्सा था, माय टेम्परामेंट, आई वाज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, एंड ओवर द इयर्स आई हैव ओवरकम दैट ग्रेजुअली। बट कि टेम्परामेंट आपका कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक दिन मैं जा रहा हूं सुबह और मुझे पता लगता है मेरी नौकरी नहीं है, तो just for no fault of mine, कोई मैंने अपनी जिंदगी में कभी आज तक, I'm very proud to say this, which of course I'm gonna share with you later stage, कभी मैंने जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ऑनेस्टी से काम किया, हार्ड वर्क इज वर्शिप was my motto in life, 18 घंटे काम करना, 20 बच्चों को छोड़ दो, सब कुछ किया, बट एंड ऑफ द डे एक स्नेक और लैडर की तरह 99 पे पहुंच के फिर नीचे 0 पे आ जाना। क्यों? क्योंकि गुस्सा, और वो गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं होता था, क्योंकि मैं देख नहीं पाता था अपने सामने अन्याय हो रहा हो कुछ। So I used to, get thrown away from my jobs, and that's what was life. But then slowly and gradually, we kind of overcame that. And now, not going further, I would like to now, request Riju to kind of, say a few words about herself. Thank you, Balraj. And first of all, thank you, Priya and Anshul, giving us this opportunity or platform to share our vision with young ones, because मुझे बड़ा पैशनेट लगता है बाय प्रोफेशन, और भी मैं टीचर से रहती हूँ, शायद इसलिए मेरी सुंदरता का राज या मेरे यंग होने का राज है, मैं हमेशा बच्चों के साथ रहती हूँ। तो दिल तो मेरा है ही बच्चे वाला, और सूरत से भी जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट होती हूँ तो एक कनेक्शन बैठता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो कैसी बातें करते हैं, क्या गॉसिप करते हैं। इनफैक्ट जब मैं लंदन में आई थी, मुझे पता है सबसे बुरी बात पता क्या सबसे मुझे हिट की, मुझे फिंगर जेस्चर नहीं पता थे, जो लोग जब रूड होते हैं एक दूसरे को दिखाते हैं, वो भी सब मैंने यंग वन से सीखे। सो आई लव शेयरिंग, जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो स्लैंग यूज करते हैं, आई लव इंटरेक्टिंग विद द चिल्ड्रन। तो मेरी लाइफ की जर्नी है, मैं 25 साल से टीचिंग करियर में हूँ, मिडिल ईस्ट में पढ़ाया है, इंडिया में भी कोचिंग की है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं यूके में पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा भी रही हूँ, मैनेजमेंट का काम भी करती हूँ, मैंने ड्रेस डिजाइनिंग की भी ट्रेनिंग ली है, फुल फ्लेज मैं अपना काम चलाती थी बहरीन में, साइड इनकम, बिकॉज टीचिंग के साथ मुझे अच्छा लगता था, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है मैं उस सब चीजों को करूं। एंड आई लर्न ट्रेवल एंड टूरिज्म, बट दैट वाज वेरी बोरिंग फॉर मी, कि दूसरों को भेजते रहो जगह जगह, देश देश, और आप वहीं पे बैठे हो टिकटें छाप रहे हो उसके लिए। सो विद इन 2 months मैंने उस प्रोफेशन को बाय बाय कर दी, क्योंकि मुझे खुद उड़ना था। ओके, सो दिस वाज जस्ट माय बिगिनिंग ऑफ समथिंग। और मैं बड़ी बॉलीवुड स्टाइल की हूं, तो जरा पेशेंस रखिए, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। One minute, there is some technical hitch, I think. छोटी सी आशा छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, यही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी। सो फ्रेंड्स, जैसे देखा अभी आपने ये गाना सुना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, आसमानों पे उड़ने की आशा। दिस सॉन्ग इज वेरी फेवरेट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जब भी मैं आप ही की तरह, आज तो कनाडा से भी लोग बैठे हैं, लेकिन मैं आपको 70s और 80s की बता रही हूँ अपनी जर्नी। मैं अमृतसर में एक गली से बड़ी हुई, जॉइंट फैमिली में, जिसमें 20 से 25 लोग रहते थे।
और सब जो थी ना, रिसोर्सेज बहुत छोटे छोटे थे, सबके पास बाथरूम नहीं था, सबके पास अपने इंडिविजुअल बेड्स नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था, सारे काम बाल्टियां तक भरना। जो लोग कहते हैं ना, आज की स्टोरीज में हम पढ़ते हैं कि अरे उसने इतना स्ट्रगल किया, अब्राहम लिंकन ने वो टेबल लैंप के नीचे बैठ के किताबें पढ़ी और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो मेरी भी स्टोरी ऐसी है, लाइट नहीं होती थी, दिन में 2 घंटे लाइट आती थी, फिर पढ़ना कैसे है, तो कैंडल के नीचे बैठ के पढ़ते थे, तो बड़ा प्राउड फील होता था। लैंप उस टाइम पे नहीं होता था, बट आज मतलब बड़ी प्राउडली मैं इस देश में हूँ, गौरव के देश में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाना उन्हें इसका मतलब नहीं पता। मैं बड़ी प्राउडली अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि तुमने तो हिस्ट्री देखी थी, तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल है जिसने टेबल लैंप जला के पढ़ाई की है। ओके, और अपनी एंड आई रिमेम्बर 80s में एक वो बैटरी चार्जर्स भी आ गए थे कि जिसमें आप 2 घंटे के लिए जब लाइट आती थी आपको चार्ज करनी थी, और उसके बाद वो 8 घंटे तक रहती थी जिसमें आप पढ़ाई कर सकते थे। तो हमने वो सब भी टाइम देखा है। और मुझे याद है जब भी मैं ऊपर छत पे कपड़े सुखाने जाती थी और ऊपर से प्लेन गुजरता था, तो ये मैं गाना गाती थी, चांद तारों पे उड़ने की आशा। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि कब ये सॉन्ग मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगा और डिवाइन एनर्जी बनेगा। कभी नहीं, मतलब जैसे हालात थे कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब ट्रेन में क्या मतलब साइकिल वाले हालात नहीं थे तो प्लेन में उड़ूंगी। सो प्लेन में उड़ने का मेरा यहाँ पे सिर्फ प्लेन के साथ मेरा है कि सोच को ऊंची रखो, अपनी सोच को इतना ऊपर लेके जाओ कि आपको आसमानों में उड़ना पड़े, वहां तक मतलब अपनी ऊंचाई को लेके जाओ। और उस ऊंचाई को ऊपर करने के लिए देखिए, प्लेन में उड़ने के लिए ऑब्वियस है, वो भगवान ने कहा ना इस तरह से मुझसे मांग कि तुम्हें ना हर चीज तुम्हें मिले। सो आई वॉज वेरी क्लेवर। प्लेन में कैसे जाएंगे, पैसा चाहिए, तो पैसा चाहने के लिए तो आप काम भी वैसे करोगे। सो एक तीर से मैंने 2 शिकार किए, ये भी कह दिया मुझे आसमान में उड़ना है और मुझे प्लेन में बैठना है। ओके, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट का जरिया है प्लेन, में वैसे ही आ सकती हूँ। लाइफ ने मुझे ऐसा कर दिखाया। ओके, उस घर में, छोटे से घर में रहने के टाइम जिसमें 20-25 लोग रहते से थे, एक ही कमरे में, मैं 23 साल, मेरी शादी 22.5-23 साल में हुई, उसी वही मेरा बेडरूम था, वही मेरा लिविंग रूम था, वही मेरा डाइनिंग रूम था, एवरी स्टडी रूम, एवरीथिंग वाज वन, एंड वी वर 5 टुगेदर। ओके, 3 बहन भाई और माँ बाप सब उनके साथ में वो रहते थे एक ही कमरे में, उसी में पढ़ाई की। कभी लगा ही नहीं कि हम लोग गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। ये तो बाद में यहाँ यूके में आई तो पता चला कि हम तो स्लम लोग डॉग मिलियनर जैसे कैरेक्टर थे, क्योंकि यहाँ तो हर किसी को कमरा चाहिए, हर किसी को हर चीज चाहिए। बट एनीवेज, उसमें मैंने क्या देखा, जब हम एक ही घर में रहते थे, एक बाथरूम था, लेकिन कभी भी किसी, मुझे याद है कोई दिन ऐसा नहीं था जब हम बिना नहाए घर से निकले हो। सब के सब 25 जन जब भी काम पे जाते थे, हम काम करके नहा के जाते थे। सो व्हाट, टाइम मैनेजमेंट, जितनी चीज है आपके पास उसी में रहना, शांति। ओके, और मेरी माँ हमेशा कहती थी, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सो हर चीज के लिए उनके पास एक कहानी थी। तो उस जो लाइफ के जो नगेट्स उन्होंने दिए, मैंने उसे ना अपने चिप में ऐसे संभाल के रखे, और अपने बच्चों को भी, मतलब मेरे 2 बच्चे हैं, जब वो छोटे थे उस चीज को संभाले रखा। वाकई ऐसे होता है, जब आप जल्दी उठते हो, कितनी सारी आपके पास टाइम है, एनर्जी है, और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज आप अपने काम, अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते, लेकिन अपने पैशन को फुलफिल करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टाइम की जरूरत है। सो आई लर्न दिस फ्रॉम माई मम। फिर उसके बाद ना, जब हम कंप्लेंट करते थे, जॉइंट फैमिली में कंप्लेंट का तो नो 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 मीन्स ऐसा हाथ, चुप कर जाओ, कोई नहीं। अपने ग्रेटिट्यूड सोचो, तुम्हारे पास छत है, सोचो 2 घंटे पानी आता है, तुम्हें नदी के वहां पे नहीं जाना पड़ता पानी लेने के लिए। ओके, सोचो तुम्हारे पास क्या कुछ है। इस चीज को लेके जब कंप्लेंट हो, मुझे एक बार याद है, मैं बहुत बीमार पड़ी, मेरा 2nd ईयर था उसका, और मैं बहुत बीमार पड़ी, और उसमें टेस्ट, मेरे फाइनल टेस्ट थे। मैं काफी क्लेवर थी, बट इतना बीमार था कि मुझे याद है मैं उस टेस्ट में सो गई थी। तो मेरी कंपार्टमेंट आई, मैं बहुत रोई अपने फादर से कि ओ, लोग क्या कहेंगे, ये तो फर्स्ट आती थी, आज ये इसकी कंपार्टमेंट आ गई है, जिंदगी खत्म। तो मेरे फादर के, हमारे ना, मैंने अपने माँ बाप से बहुत कहानियां सुनी है। अगर आपके पास टाइम हो ना कोई सेशन में, मैं 2 घंटे आपको इतनी कहानियां सुना सकती हूँ। सो मेरे को ना, उन्होंने कहानी हमेशा सुनाते थे किंग ब्रूस की, कि जब वो हारा
तो उसने सोचा अपनी जिंदगी को खत्म कर देना, तो वो एक केव में गया और उसने सोचा आज मैं इतना बड़ा राजा था और मैं हार गया हूं, तो मैंने क्या करना है। जब वो वहां पे बैठा था, अपने आप को मारने की तैयारी में था, उसने देखा एक मकड़ी का जाला था, एक छोटी सी मकड़ी बार बार ऊपर जाती है, बार बार नीचे गिरती है, ऊपर जाती है, गिरती जाती है, ऊपर जाती है, गिरती। 100 टाइम्स वो उस चीज को देखता रहा और उसने कहा ये छोटी सी मकड़ी इतनी बार ट्राई कर रही है और मैं इतना बड़ा राजा, मैंने इतना अपना वो रखा है, अपना वो पैशन, अपना प्राउड, अपना सब कुछ दिखाया, मैं एक इतनी सी चीज से हार गया। एंड ही गॉट दैट करेज इनसाइड एंड वो निकला और उस दुनिया पे छा गया और उसने विजय पाई उसके बाद। सो मीन्स मैंने वहां अपने घर में रह के अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत सारी क्वालिटीज, टॉलरेंस, नॉन जजमेंटल, ये सारी चीजें देखी। ओके, सो दिस वाज माय जर्नी दस। और आज जैसे कि प्रिया और अंशुल ने आप लोग सब लोगों को बताया होगा कि आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं इस थ्रू आउट जर्नी की पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन फॉर लाइफ क्या चीज है और उसे कैसे इनकलकेट करना है। एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिविटी टू मेक स्टूडेंट्स गेट रिड ऑफ एंशियसनेस of being locked up at home, how to bring clarity in your life for facing the challenge in outer world, role of meditation in making you calm and composed and ready for any challenges, journey of life and how to enjoy it, and later on हम question answers का session भी करेंगे। So dear friends, once again very thankful कि आज आप हम लोगों के साथ जुड़े हैं। एंड दिस, एज माय हस्बैंड अर्लियर सेड, दिस इज हार्ट, सो हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन। और जिसको, बिकॉज इंडिया में लंच का टाइम है, परांठे, माँ, जो भी खाना है खाइए, और जो कनाडा में बैठे हैं प्लीज कॉफी लीजिए, जैसे भी करना है वैसे बैठिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, आज का पूरा सेशन जो है वो रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी रिलीजन की हम कोई बात नहीं करेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। सो व्हाट इज, बहुत सारे लोग रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत गड़बड़ कर देते हैं, तो इसीलिए मैं स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी इज कांस्टेंट कमिंग बैक, लुकिंग इनवर्ड, गेटिंग रीसेंटर्ड एंड लुकिंग बियॉन्ड आवरसेल्व्स। ओके, अपने आप से, अपने अंदर देखना, ताकि आप आउटर वर्ल्ड के जितने भी ट्रॉमास, जितनी भी भूचाल, टॉर्नेडो, लॉकडाउन होएगा, उसको ले सको। नाउ आई ओवर टू माय हस्बैंड फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू जी। जैसे आपने देखा कि रिजू को जस्ट बोलने की कितना मजा आता है उनको, एक बार शुरू होती है तो फिर वो रुकती नहीं है, और मैं ये सोच रहा था कि बोलना उसने कुछ और था और वो बोल क्या रही हैं। बट एनीवे, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, इजंट इट? तो coming back to the subject, your inner self is who you really are on the inside. Okay, ये चीज जानना आपको बहुत जरूरी है। To know your inner self is to know your purpose, values, vision, goals, motivations and beliefs. मतलब अपने अंदर से, मैं जब एक छोटा सा बच्चा था तो मैं अपने अंदर से ये सोचता था कि मेरा नाम बलराज कपूर है, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, और एक क्या है, हम लोग हमेशा अपना नेम टैग जो है एक रीजन से, एक एनवायरनमेंट से, एक रिलीजन से रिलेट कर देते हैं। बट क्या हमको नहीं लगता हम एक दूसरे के साथ एक ह्यूमन लेवल पे हमारा कनेक्शन होना चाहिए? Why are we so bound to these little walls that we built within our society and our world? So we should think beyond that. कि हमारा गोल लाइफ में क्या है, हमारा गोल किस तरफ हमें ले जा रहा है। Now what you've been told by others, but what you discovered for yourself, मतलब ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। कभी भी इस प्रेशर में मत आइए कि मेरे पेरेंट्स मुझे चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं शेफ बन जाऊं, मैं पायलट बन जाऊं। आप वही करिए जो आपके दिल की आवाज आपको कह रही है, और आपके लिए बहुत जानना अपने अंदर से जरूरी होता है इंसान को। क्योंकि फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या मैं एक इंडस्ट्री में बाय डिफॉल्ट चला गया। मेरे फादर होटेलियर थे जिनको मैं रोज देखता था कि वो सुबह शाम रात हमको टाइम नहीं दे पा रहे, एंड आई यूज्ड टू हेट दैट प्रोफेशन एज अ चाइल्ड। और देखिए बाय डिफॉल्ट मैं उसी जॉब में चला गया, उसी प्रोफेशन में, उसी करियर में मैंने अपने 35 साल जिंदगी के दे दिए। जिस तरह रिजू ने एक छोटा सा प्लेन देखा था अपने छत पर, उस तरह मैंने भी एक प्लेन देखा था अपनी जिंदगी में, और मैंने सोचा था कि मैं इस प्लेन का मैं कब पायलट बनूंगा।
तो पायलट तो मैं नहीं बना जिंदगी में, लेकिन 35 साल बाद मैं आपको वो थोड़ी सी स्टोरी बाद में बताऊंगा फास्ट फॉरवर्ड, कि वो 35 साल बाद एक पायलट का मतलब क्या आया मेरी लाइफ में. सो this is what is important for you to understand. Knowing your inner self requires introspection and self awareness. दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आपको कुछ वक्त अपने लिए, you need to sit down in a quiet place and not be distracted by anything around you. You should just sit quietly and understand what is your inner self talking to you. Because हमारे अंदर, हर शख्स के अंदर एक छोटा सा बच्चा जो हमने 4-5 साल पहले की उम्र का था, वो बच्चा हमारे अंदर अभी भी है. वो 60 साल 70 साल तक आपके अंदर रहेगा. लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो आपको उस बच्चे से थोड़ा थोड़ा करके जुदा करता जाएगा. आप उस बच्चे को भूल जाओगे, आप ड्यूटीज में लग जाओगे, आप करियर ग्रोथ में लग जाओगे, आप वो पाने का गोल, वो जो पाने की लालसा, उसमें लग जाओगे. सो what is important is, जिस तरह ये हाथ है ना दोस्तों, ये हाथ को मैंने अपनी लाइफ के एक 5 प्रिंसिपल्स में से कर लिया है. ओके, सो कमिंग टू दिस, व्हाट इज दिस उंगलियां फॉर मी. मेरी सबसे पहली उंगली थी ऑनेस्टी. मैंने अपनी जिंदगी में ऑनेस्टी को बहुत बड़ा अहमियत दी. उसके बाद दूसरा था हार्ड वर्क, परिश्रम. मैंने जिंदगी में हमेशा, अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क की, हमेशा जो है जुट के, वर्क इज वर्शिप, सब कुछ मैंने छोड़ के उसके ऊपर ध्यान दिया. तीसरी उंगली पे आता हूं नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस दोस्तों वो नहीं कि एक दूसरे के साथ हमने मारपीट नहीं करनी. नॉन वायलेंस का मतलब है अपने दिमाग से हमने किसी के बारे में कभी भी कोई बुरा नहीं सोचना. दोस्तों, हम किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचे अपने मन से. दिस इज द एक्चुअल नॉन वायलेंस विच यू आर ट्राइंग टू डू विद इन योर सेल्फ. क्योंकि किसी के बारे में भी बुरा सोचना, आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर में, और वो नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करती है, उसको नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि उसको तो क्या वो सोच रहे हो उसके बारे में, राइट. तो ये नॉन वायलेंस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में. चौथा, सीलिंग ऑन डिजायर. सीलिंग ऑन डिजायर से मेरा मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि हमें जिंदगी में वो सब ऐशो आराम और सब कुछ मिलना चाहिए. We should not get affected by people, by environment, by our friends. कि उसके पास गुची की जहाँ घड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है. उसके पास आज एक्स प्रो मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है. उसके पास ये लुई विटोनी की शर्ट है, वो मेरे पास क्यों नहीं है. दोस्तों, शर्ट तो वही है, फोन तो वही है. तो हम एक दूसरे को ये जो दिखावा का जो ढोंग रच रहे हैं ना, उसमें क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं. सो बी सिंपल इन लाइफ. हमेशा अपनी सोच को सिंपल रखो दोस्तों. और सीलिंग ऑन डिजायर से मेरा ये मतलब है कि मेरे फादर मुझे हमेशा कहते थे कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट. दैट मनी is actually a permutation and combination of numbers and figures in your bank account. कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही थी मुझे, और ये बात मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा रखी कि मुझे तो उतना ही चाहिए जितने में मैं खुश हूं. और ये हमेशा आपको भी अपने अंदर में रखना है कि उतना ही कमाओ जितना आपको खुशी मिले जिससे. क्योंकि उसके बाद तो एक नंबर एंड फिगर्स हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में कि आज एक घर है, 2 हो, आज इस घर एक गाड़ी है, मेरे पास 4 हो. इससे आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस खुशी को आगे और आगे उसी खुशी में आप जाते जाओगे, जब खुशी जो है वो छोटी छोटी चीजों में आपको मिलेगी. एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. अभी आगे जैसे बलराज ने बताया कि वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, तो वैल्यूज तो हमें पता है, लेकिन हर कोई कह रहा है कि ट्रुथ बोलना चाहिए, पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी है क्या? सो यू नीड टू रिमेंबर इन लाइफ यू आर मोर देन योर आइडेंटिटीज. हम आइडेंटिटी को कहते क्या है? मैं कौन हूँ? मैं रिज्जू कपूर हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक टीचर हूँ. और इसी से मतलब मैं अपने जो रोज जो मेरे टैग्स लगे हैं, मैंने उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया है. क्या होगा अगर मुझे स्कूल से निकाल देंगे? बस वहीं पे डिप्रेशन शुरू, मेरी दुनिया खत्म कि मैं नौकरी से निकाली गई. अब आगे क्या होएगा? सो जिसको मैंने आइडेंटिटी बनाया था वही मेरी डिप्रेशन का कारण बन गया, वही मुझे पॉइजन देने लगा. मैंने सोचा मैं लॉयर बनूंगा, मैं सक्सेसफुल लॉयर नहीं बना. मैंने 5 साल अपनी जिंदगी की बिता दिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं बना.
तो क्या मैंने अपनी आइडेंटिटी, अरे मैंने क्या किया, पैसा भी लगाया, ये सब भी किया, पर हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उससे आइडेंटिटी बना लिया था. So your identity is not with your name tags. Your identity is your inner self, your character, जो आपको आपकी फिजिकल, जो आपको एक वो देता है, प्रेशर देता है काम करने के लिए. सो कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ कि सो व्हाट, आज मेरी नौकरी चली गई, सो व्हाट, आज मैं एंजॉय नहीं कर रहा करियर को, मुझे उसका घर बैठने से, गोलियां खाने से कुछ भी नहीं होएगा, लोगों को डांटने से, अपने आसपास, मैं दुखी हूं, मेरे आसपास भी सारे दुखी में दुख होके मेडिटेशन करें, इससे कुछ भी नहीं होगा. घंटियां खड़काने से, भगवान का नाम लेने से थोड़ी बहुत शांति आएगी, लेकिन जब तक अंदर शांति नहीं है, कोई भी चीज आपको मिलने वाली नहीं है. सो कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, योर आइडेंटिटी, कि आज मुझे कुछ खत्म हो गया तो बस दुनिया को नहीं खत्म करना, मुझे अपने आप को दोबारा से उस चीज पे लेके आना है. इसकी कितनी हिस्ट्री में कितनी एग्जाम्पल्स हैं, लोग गिरते हैं फिर उठ के खड़े हो जाते हैं. तो जब गिरो बच्चों, तो हमेशा ना उन लोगों के बारे में सोचो जो उठ के खड़े हुए थे. और जब टर्बुलेंस आते हैं ना लाइफ में, उस टाइम पे अपना ग्रेटिट्यूड जरूर शो करो कि आज मेरे पास माँ बाप है, आज मेरे पास ये चीज है. उस लास्ट जो आपके फेलियर है ना, उसको मत अपनी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट. सो फेलियर्स आर योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. इस चीज को अगर आप हमेशा अपने साथ, अपने अंदर कनेक्ट रखोगे, हमेशा आगे बढ़ते ही जाओगे. कभी जिंदगी में जो चैलेंजेस आएंगे उनको हमेशा फेस कर पाओगे. सो अगेन योर इनर एनर्जी जो है वो कैसे मिलती है, जब आप उन्हीं लोगों के साथ बैठते हो. लोग पूछते हैं कि मैं अपने फियर को कैसे कम करूं. वेरी सिंपल सोल्यूशन, जो लोग आपको डराते हैं उनके साथ बैठना बंद कर दो, फियरलेस लोगों के साथ बैठो. वेरी राइट. ओके, जब आप फियरलेस लोगों के साथ बैठोगे, आपकी पर्सोना भी वैसा ही बनेगा, आपको पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स भी उनसे, जो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो आपको अट्रैक्ट करने लगेंगे उन चीजों के. ओके, जो मैं हमेशा ना, एक कुछ लॉकडाउन से पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था. टीनेजर्स थे, उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया. मैंने उनसे पूछा, मुझे अपनी लाइफ की 5 चीजें लिख के बताओ जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है. और मतलब तुम कितने भी दुखी हो, उस चीज को सुनने से तुम्हें दुखी मतलब तुम इतने खुश होगे ना कि बस दैट्स इट. तो पता है उसमें मेरे, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट आपसे भी करवाती तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग भी उसमें से किसी ना किसी, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, जो एग्जाम्पल्स उन्होंने लिखी थी, कुछ जरूर लिखते. कुछ लोगों ने बोला, मुझे अपने माँ बाप से बड़ी खुशी मिलती है, मुझे बहन भाई से बड़ी चीज, मुझे मोबाइल से मिलती है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने से मिलती है, मुझे लॉन्ग ड्राइव से मिलती है, मुझे गाड़ी लेने से मिलती है, मुझे बाइक अच्छी लेने से मिलती है, यू नो ऑल दोस थिंग्स. जब उन्होंने ये सब लिख लिया तो मैंने उनसे पूछा, आई अंडरस्टैंड माँ बाप आर रिसोर्स, मतलब आपको ग्रूम करने में आपकी मदद करते हैं, पर समझिए माँ बाप, मतलब एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, माँ बाप की डेथ हो गई, नहीं रहे तो खुशी खत्म हो जाएगी, मर जाओगे उनके साथ. मैंने आज तक कभी नहीं कोई देखा किसी बच्चे ने बलिदान दिया हो जब माँ बाप तो मर जाए, कभी किसी ने नहीं दिया. मोबाइल टूट गया, क्या करोगे? चोरी करोगे, उसके बाद अपनी दुनिया का खाना पीना छोड़ दोगे, उपवास रखोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी थिंग्स, जिससे हम कहते हैं कि मैं इससे करा. मैं आपको बता दूं, जब आप दुखी होगे ना, जिस डांस के ऊपर दिन में 10 बार बल्ले बल्ले करते थे ना, वही गाना कहोगे, बंद कर, अपने मोबाइल को मारोगे दीवार के ऊपर कि मैं ये क्यों सुन रहा हूँ. सो खुशी इन चीजों से नहीं मिलती, खुशी अंदर से मिलती है. ओके, तो आपको इस चीज को समझना है कि जब मुझे टर्बुलेंस आए तो मुझे अपने अंदर झांकना है, ना कि बाहर. और अंदर झांकने के लिए बड़ी सारी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है लोगों के साथ, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, जो आपको सुनेंगे. ओके, तो अपनी बात को कहने से कभी मत डरिए. So the importance of finding your inner self. Why is it important to find your inner self? क्यों जरूरी है ये हमें जानना कि हम अंदर से क्या है? क्योंकि उसी से दोस्तों आपको वो दिव्य शक्ति का एहसास होगा. That feeling of, you know, belonging to yourself. That is what is very important. You are the owner of your own life, friends. आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है. There cannot be another person like you. You are so unique. You are so special. You are so beautiful. ये चीज आपको proudly feel करना चाहिए दोस्तों. It is so important for that because आप खुद अपनी जिंदगी के मालिक हैं और उसकी जिंदगी की किस्मत आप खुद बनाएंगे.
अपने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने विजन से. You are not connected with who you really are. You're probably just living life of others, isn't it? कभी कभी हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, तो it's very important to know your inner self. The first step of living a conscious life of your creation. ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों. अब आपको मैं एक छोटा सा चीज बताने जा रहा हूं कि एक सिक्का जो होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं. हमारी लाइफ भी जो है वो एक सिक्के की तरह है, isn't it? जिसमें दिन भी है, रात भी है, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है ना? कितनी ब्यूटीफुल चीज है ये कि एक सिक्के के साथ आपको अपनी कनेक्शन करनी लाइफ की. डार्कनेस एंड लाइट, राइट? एंजल एंड डेविल, है ना? तो ये जो सिक्का है, मेरी जिंदगी में मैंने इसको बहुत अहमियत दी, क्योंकि मेरे को लगा कि ये सिक्का जो है ना, मेरी जिंदगी की नैया पार कर देगा. और बिलीव मी दोस्तों, इस सिक्के को मैंने जब मैंने लाइफ में कोई कंफ्यूजन हुई, मैंने अपने इस सिक्के को उछाला और अपनी किस्मत का फैसला मैंने उस सिक्के से लिया. और 10 out of 10 टाइम्स दोस्तों मैं कहता हूं कि मेरा वो डिसीजन जो मैंने सिक्के को उछाल के लिया, वो हमेशा सही निकला. जब मैंने इस मैडम से भी शादी की तो उठाया सिक्का और उछाला, और मुझे पता लग गया कि ये जो लेडी बैठी है मेरे बगल में, ये कैसे मेरी लाइफ को चेंज कर देगी. और इन्होंने करके दिखाया मेरे साथ. जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन लोगों को पता है हाउ, बिकॉज दे से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, and this lady has brought me out of that darkness to the light. So try to find that light for yourself. ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों. इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगी, जब भी लाइफ में आपको टर्बुलेंस आते हैं तो माइंड और दिल में से किसको चूज करना है? दिल को चूज करना है. माइंड क्या है? फोटो कॉपी है. जो आप देखना चाहते हैं ना, वो या जो दिखाना चाहता है वही माइंड आपको लेके आएगा. लेकिन दिल की आवाज को सुनना, वो हमेशा सच्ची होती है. और अगर दिल की आवाज से जब आप लेते हो ना, डिसीजन लेते हो, तो अगर उसमें गलती भी हो जाए ना, आपको सुधरने के बहुत चांस, क्योंकि आपने दिल से लिया था. उस टर्बुलेंस में ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है. और फ्रेंड्स, मैं अभी आपसे एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ. ये होगी 3-4 मिनट की, लेकिन इसको शुरू से एंड तक जरूर देखना. See? Yes. Share screen. No, not this. What's your name, darling? My name is Susan Boyle. Sorry, Okay, आपको 1 मिनट. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of villages. That's a thing there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it will change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Feel like Page. that? What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed the Dream from Vanessa Rath. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by.
Thank you very much, Susan Pearce. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on the show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning, an incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock about you two. I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was inspiring. I knew the minute you walked out on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Not a lot of touch. Okay. मैं ये जो सॉन्ग है ये मेरी कहानी है, और मैं जब भी ये देखती हूँ लो फील करती हूँ तो दिस इज माय बॉर्नविटा. ओके. और मैं इस चीज को भी मैं इसको नरेट करती हूँ, इस वीडियो को. जब आपने देखा था जैसे वो स्टेज पे आती है सुजन बॉयल, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लोगों ने पहले ही जजमेंट कर ली थी कि इसके ऊपर हंसना है. और जो प्रेजेंटर्स थे उनका भी था कि ये करेगी क्या. पर उस लेडी का पैशन देखो, उसने बड़ा मतलब इनफैक्ट उसको वर्ड्स भी नहीं आ रहे थे कि उसने क्या बोलना है. ऑडियंस उसको बोल रही थी तुम ये कहना चाह रही, उसकी हेल्प कर रही थी वर्ड्स के साथ. और उसने अपने पैशन के साथ, उसने ये नहीं कहा कि 47 में मुझे उस प्रोग्राम में जाना है और विनर बनना है. उसने परफॉर्म किया एंड विदाउट किसी के वो एप्रिसिएशन के कमेंट्स के वो स्टेज से वॉक ऑफ हो गई कि जिस पर्पस के लिए आई थी उसने वो काम कर दिया. लेकिन मेरा आपको वो दिखाने का क्या था, जब आपकी सोच, आप में ट्रुथ, आपकी ऑनेस्टी है, आप लोगों को मजबूर कर देते हो खड़े होके ताली बजाने के लिए. ओके. सो मेरी जिंदगी में भी एक वीकनेस को मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा एक हर्डल माना था, बहुत मतलब क्लेवर होने के बावजूद भी. व्हाट वाज दैट कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती. आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश. ओके. तो बड़ा अजीब लगा. मेरी शादी ऐसे पर्सन से हुई, वो बात इंग्लिश में अंग्रेजी में करते थे सारे, मतलब. और मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मैं इस बात को कह भी सकती हूँ बट आई डू नॉट हैव वर्ड्स. मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि सारे मेरे हस्बैंड के सर्कल में सब इंग्लिश में बोलते थे और मेरे पास वो कुछ भी नहीं था. और मैं बहरीन में गई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ करना है अपनी एक्सेंट के लिए. एंड ही वाज ऑलवेज अगर ये कहते ना किसी आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत है, औरत की सक्सेस के पीछे भी कोई आदमी है. ओके. बट आपकी अकेली सोच होनी चाहिए. इफ यू आर ऑनेस्ट, बट जिंदगी में ढाल मत बनो. यस, माई हस्बैंड आर विद मी, पर एक्शन मैंने करने हैं. योर पेरेंट्स आर विद मी, एक्शन आपको करने हैं. योर टीचर्स आर विद यू, पास आपको होना है, मेहनत आपको करनी है. सो मैंने ब्रिटिश काउंसिल में गई, मैंने वहां पे 2 महीने अपना वहां पे कोर्स किया इंग्लिश फ्लुएंट करने का. फिर उसके बाद जर्नी देखिए, फाइन, मैंने बहरीन में इतने लोगों को पढ़ाया है, मतलब मिनिस्ट्री के लोगों को, और वो मेरे आगे ऐसे गोल्ड फेंकते थे और मेरे को आके बोलते थे यू आर द फर्स्ट मदर. मतलब जिनसे लोग डरते हैं एक चुटकी में लोगों को डिपोर्ट कर दे, वो मेरे आगे आके बोलते थे कि यू आर द फर्स्ट मदर. और मतलब मेरी अचीवमेंट में लाइफ में से इस प्राउड नहीं कहती, दिस इज ऑल गॉड्स ग्रेस एंड ही जस्ट यूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट. और उस चीज को फिर हम लंदन में आए. ओके, इंग्लिश बोलनी सीख ली, सब कुछ हो गया. एक्सेंट वाज एंटायरली डिफरेंट, बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी डिफरेंट. आई स्टार्टेड, मतलब प्रोग्रेस मैंने बहरीन में मिडिल ईस्ट में काफी कर लिया था अपने टीचिंग करियर में, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई जॉब के लिए मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा. बट मैंने उसको बिल्कुल भी उसको अपनी लाइफ का हर्डल नहीं समझा. इनफैक्ट जब मेरी इंटरव्यू भी ली गई, हेड टीचर्स के पैनल ने मुझे बोला तुम्हारी तो इतनी क्वालिफिकेशन है, देन व्हाई यू आर टेकिंग दिस जॉब. तो मैंने बोला नो, दिस इज द स्टेपिंग स्टोन इन माय करियर. और मैंने काम करना शुरू किया.
और जिस स्कूल में मैंने काम करना शुरू किया, मुझे याद है मैंने लेसन्स, मतलब हमेशा से लगता था नो, आई एम नॉट परफेक्ट। एक चीज को कहने में को मुझे बार बार कहना पड़ता था, पार्डन मी, सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज स्पीक। मुझे याद है एक बार किसी पेरेंट ने मेरी हेड को कमेंट दिया कि मिसेस कपूर्स लेसन्स वर वेरी इंस्पायरिंग, वी आर वेरी हैप्पी विद हर। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ, मतलब वो क्या क्या रही है। मेरे को लगा पता नहीं उसने कोई कंप्लेंट किया। मैं सारा दिन उसी बुन में लगी रही। तो मेरी मेंटर आई, कहती रिजू दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। आई सेड व्हाट? शी सेड यू डिडंट हियर द कमेंट फ्रॉम योर हेड। आई सेड व्हाट वाज इट? तो उसने बोला कि वो तो तुम्हें कह रही थी तुम्हारे लेसन्स इतने मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है कि हमारे बच्चे जो होमवर्क भी नहीं करते थे उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। मीन्स मुझे अपना पॉजिटिव थिंग भी लेना नहीं आता था। ओके और मुझे याद है एक बार हम लोग पहले बलराज के अपने हस्बैंड के वर्क परमिट पे आए थे और हमको वर्क परमिट की कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी और मुझे अपने वर्क परमिट पे जाना था। जब हम वहां पे गए तो पता चला कि सॉरी जी, आपको वर्क परमिट नहीं मिल सकता बिकॉज आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। और मैं स्कूल से थोड़े हाफ डे की छुट्टी पे गई थी और मुझे याद है उस दिन स्कूल में हमारी इतनी बड़ा सेमिनार था, सारे हेड्स सब लोग आए थे और मेरी हेड ने मुझे पेवमेंट से आते हुए देखा एंड आई रिमेम्बर वो ऐसे भागी हुई मीटिंग छोड़ के, जहां पे इतने इतने बड़े लोगों को, डेलीगेट्स को बुलाया हुआ था, वो भागी हुई मेरे पास गेट पे आई, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोलती व्हाट्स रॉन्ग विद यू रिजू। उसने परवाह नहीं की कि मीटिंग चल रही है, डेलीगेट्स बैठे हैं, मुझे सीधा ऑफिस में लेके गई, पानी दिया एंड शी सेड आई एम गोइंग टू सॉर्ट दिस। विद इन 10 मिनट्स में उसने लॉयर को फोन किया और मेरा वर्क, आज हम जिस बदौलत में बैठे हैं बच्चों, सिर्फ उसकी, कैसे मैंने मजबूर कर दिया अपने वर्क एथिक से, अपनी ऑनेस्टी से, कि लोग मेरे लिए भी तालियां बजाएं। लोग मुझे आज भगवान कहते हैं। इट्स लाइक प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैंने कैम्ब्रिज के बच्चों को मेंटरी की है, किंग्स कॉलेज के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, इतनी बड़ी बड़ी मतलब 200-200 लोगों के पेरेंट्स की कोचिंग की है, पॉलिसीज लिखी हैं, जो लर्निंग डिफिकल्ट्स की बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनके पेरेंट्स के साथ 1-to-1 बैठ के उनको कोचिंग की है। यू नो दिस इज माय लाइफ अचीवमेंट। मैंने किस चीज को, एक अंग्रेजी को बना लिया था। सो जब आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करते हो तो आपकी हर चीज पूरी हो जाती है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप बिल्ली हो ना, तो जब आप मिरर देखो ना तो सोचना मैं शेर हूं, तो ऐसे पाउंस करना कि दुनिया का यस, बिल्ली तो है लेकिन शेर जैसी इसमें गट्स है। सो किसी लाइफ के चैलेंजेस, दीज आर जस्ट स्मॉल हर्डल्स, यू आर द मोस्ट प्रेशियस स्टार on this living earth. You need to remember in life, this is the king. खुश रहना ही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो ये छोटी छोटी, माँ बाप ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उस चीज को कहना सीखो। माँ बाप को इतने बुरे नहीं होते। और आई थिंक अगर कोई पेरेंट्स भी वॉच कर रहे हैं तो मैं उन्हें बोलूंगी इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म कीजिए। ओके और बच्चों अपनी जिंदगी मोबाइल पे मत खर्च करो, उससे ज्यादा बहुत कुछ लेने के लिए है, बहुत कुछ। ओके सो रिजू ने जैसे बताया, तो मेरे लिए मेरी लाइफ में रिजू इज माय सुजन बॉयल, बिकॉज एक अकेली लड़की अपने विजन से, अपने ड्रीम से, अपनी डिटर्मिनेशन से आज वो गोरों के देश में गोरों के बच्चों को, गोरों को इंग्लिश पढ़ा रही है। Now that is something which I think all of us should feel so proud about, and I am immensely proud about this. That you know this beautiful feeling of determination, कुछ करने की भावना जो जिंदगी में उन्होंने हमेशा की, that was so commendable. So friends, today अब हम उस टॉपिक पे आते हैं। और अब मतलब अब आपको बता दिया इनर सेल्फ से कनेक्ट कैसे होना है, आप कैसे अपनी आइडेंटिटी को जानो, कैसे हर्डल्स करने हैं। तो उसकी जो पावर है, उसकी जो बैटरी आपको लेनी है, कैसे मिलेगी? अंदर अपने आप को कनेक्ट कैसे करना है, उसका टूल क्या होता है? दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। सो मेडिटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका कोई किसी धर्म से लेना देना कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन इज जस्ट साइलेंसिंग द इंस्टेंट चैटर ऑफ योर रेस्टलेस माइंड। मतलब अपने मन को जो कहता है ना इधर से भागा जा रहा है हर तरफ, उसको कंट्रोल करना। ओके तो आज इस थोड़े 15-20 मिनट में हम आपको मेडिटेशन की टेक्निक सिखाएंगे। उसमें करना क्या है, बस अपनी आंखों को बंद करना है, अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग, नेचुरल सॉफ्ट ट्रैंक्विल ब्रीदिंग की ओर ऑब्जर्व करना है।
जब मैं अपने स्कूल में यहाँ पे मेडिटेशन के लिए कहती हूँ तो बच्चे जोर से ऐसे कर, कोई पंपिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे बैठे हो वैसे बैठना है और उसका ध्यान लगाना है। जो आज हम आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, इस मेडिटेशन का नाम है आनापानसति मेडिटेशन। आना मीन्स इन ब्रेथ, अपाना मीन्स आउट ब्रेथ एंड सति मीन्स बी विद। मीन्स आना मीन्स जो आपकी सांस अंदर जा रही है, अपाना मीन्स जो आप सांस छोड़ रहे हो, और सति मीन्स बी विद, कनेक्ट विद, उस मेडिटेशन से कनेक्ट होना। जब आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। थॉट्स तो आएंगे, यू कैन नॉट कंट्रोल, बट आपको जब भी थॉट्स आते हैं आपने क्या करना है, अपने माइंड को बोलना है आई एम सिटिंग इन द मेडिटेशन एंड आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उसके ऊपर मुझे देखना है। फोकस इज ऑन द ऑब्जर्व योर ब्रेथ ओनली, नॉट कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्जर्व। ओके, ऑब्जर्व करना है, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन से बाद में बढ़ेगी। सो फर्स्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। ओके, और इस मेडिटेशन को लॉर्ड बुद्धा ने किया था कि हर 2500 साल पहले, कि हर इंसान जो चाहता है जिंदगी में वो पा सकता है। इट इज अप टू अस व्हाट डू वी वांट टू सी। अगर देखिए आप जिंदगी में सरफेस लेवल पे रहेंगे तो जो शेल्स होते हैं ना सी शोर में, वही पाएंगे, लेकिन जब आपको चाहिए जिंदगी में नगेट्स चाहिए, मोती चाहिए, तो आपको घुसना पड़ेगा। ओके, वो कहाँ? अपने अंदर, नॉट बाहर। बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, पहले अंदर करो, फिर उससे क्या आएगा, फिजिकली बाहर भी बहुत ब्यूटीफुल लगोगे, यंग लगोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, भागोगे, और मेंटली भी इतने स्ट्रांग होगे, कोई भी तूफान आ जाएगा, लॉकडाउन जैसे 10 चीजें आ जाएंगी, उसको भी ले सकोगे। ओके, और मैं इसमें ये आपको बताऊंगी, जब से मैंने लॉकडाउन के बड़े सारे फायदे हुए, बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, हमने जूम मीटिंग करनी शुरू की, फैमिली के साथ अंताक्षरी के लिए कनेक्ट हुए, जिनसे कभी बात नहीं की थी उन लोगों से बात करना, कम रिसोर्सेज में कैसे जीना है वो सीखा। और इस लॉकडाउन में मैंने और बलराज ने दोनों ने आनापानसति मेडिटेशन करनी सीखी। और इसमें शुरू में मुझे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो हमेशा हंसती रहती हूँ, मुझे क्या इसकी जरूरत पड़ी है। लेकिन ग्रेजुअली मैंने देखा, इसमें बताया गया कि इससे आप अपनी जो बीमारियां हैं उसके ऊपर भी विन कर सकते हो। मतलब विन विन तो है ही, ऑफिस में तो विन विन सिचुएशन है, लोग मेरी बात समझने लगे हैं, मुझे समझ में आ गया, लेकिन एलिमेंट्स के बारे में मुझे नहीं पता था। सो आई वॉज एस्थमेटिक फॉर 3.5 years, और मैंने लॉकडाउन पे इस चैलेंज को लिया। मैं स्टेरॉइड्स लेती थी, सुबह भी लेती थी, शाम को भी लेती थी, और मैंने बोला अब मुझे भी अपनी सोच के ऊपर काम करना है। तो फर्स्ट वॉज बिगेस्ट चैलेंज कि यहाँ तो खांसी करूंगी तो लोग बोलेंगे मुझे वायरस है, फटाफट भाग जाएंगे, करूं क्या। बट आई स्टार्टेड चैनलाइजिंग माई एनर्जी, और मैंने क्या किया, वो 10 दिन, पहला हफ्ता तो बड़ी प्रॉब्लम आई, 10 कदम भी चलती थी सांस हांफने लगती थी, जोर जोर से होने लगती थी। पर मैं क्या कहूँ, फिर मैं सोचती थी अपने माइंड में, अच्छा ऐसा करती थी, इसको फेंक देती हूँ अपनी मेडिसिन को, शायद इससे ठीक हो जाएगा। पर क्या उससे मेरी वो जो प्रॉब्लम रूट कॉज खत्म होती? मैंने एक दिन क्या किया, डिटर्मिन, आई थिंक इट वाज द 11th डे, मैंने जितने इनहेलर, जितनी मेडिसिन लेती थी, उनको सबको ड्रेसिंग टेबल पे सजा दिया, और रोज उनको कहती थी तुम एक नॉन लिविंग चीज हो और मैं एक लिविंग हूँ, मेरे में सोचने समझने की शक्ति है, और मैं तुम पे विन करूंगी। दिस इज ऑलमोस्ट नाउ 60 days, मैं अपनी कोई मेडिसिन नहीं लेती, बिना इनहेलर के अच्छी खासी जिंदगी जी रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको आज जो है इसको हम लोगों को किसने सिखाई आनापानसति मेडिटेशन? मैं आपको जस्ट इसकी एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। आप इस स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये है ब्रह्म ऋषि पत्री जी, ये हैदराबाद में रहते हैं। इन्होंने आज से कुछ साल पहले इसको जाना कि जिंदगी में खुशी का हर किसी को हक है, एंड ही इज ऑथर। इन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। ये क्रिकेट खेलते हैं, फ्लूट इतनी अच्छी बजाते हैं, गाते इतना अच्छा है, कुकिंग इतनी अच्छी करते हैं। सो अगेन फ्रेंड्स, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं अपना घर परिवार छोड़ दो, तो अगर छोड़ा होता तो जो फ्रेंड्स मुझे जानते हैं उनको पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ कितने 1 नंबर के भांड हैं। सो इसलिए आपकी खुशी को, आपको क्लब्स जो भी करते हो सब चीजें करनी है, लेकिन अपनी लाइफ में मेडिटेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी अपनी लाइफ में। पत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर तुमने मेडिटेशन को अपनी लास्ट प्रायोरिटी लाइफ में बताया तो तुम बुद्धू हो। अगर बुद्धा बनने चाहते हो तो अपनी लाइफ में फर्स्ट थिंग मेडिटेशन को डाल दिए।
डाल दीजिए। तो अभी आपके साथ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, बस हाथों को ऐसे क्लास्प कर लीजिए ऐसे, और अपने अगर आप चेयर पे बैठना चाहते हैं, चेयर में टांगों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। अगर बेड पे बैठे हैं तो चौकड़ी लगा के जैसे बैठे हैं पिक्चर में, आईज आगे आपको, लंबे भी कर सकते हैं आप बेड हाँ पर, बेड पे बैठे अगर आप नहीं कर सकते, क्रॉस होनी ऐसे चाहिए। ऐसे आपको करना है, ऐसे करके बैठना है। और अपनी आईज को थ्रू आउट, दिस इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि अपनी आईज को 10 मिनट के लिए, आज हम 10 मिनट के लिए कर रहे हैं, आपको 10 मिनट के लिए इसको बंद रखना है और अपनी सिर्फ अपनी ब्रेथ को करना है। द रीजन फॉर दिस, अ साइंटिफिक रीजन, जब हम आइस को खोलते हैं हम 80% अपनी एनर्जी आइस से कंज्यूम करते हैं, एंड 10% फ्रॉम आवर हैंड एंड 10 फ्रॉम आवर फीट। लेकिन जब हम इन चीजों को बंद करते हैं, हम अपने आसपास ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं, ऐसा जो हमें इन बिल्ड के लिए, इट्स लाइक अ पावर हाउस फॉर यू, इट्स लाइक अ बैटरी। जब आपकी लाइट चली गई तो आपको वो आपको रोशनी देगी, मीन्स टर्बुलेंस में, तो दैट एनर्जी वी सेव। और कहते हैं 1 मिनट की मेडिटेशन अगर आपने सही ढंग से की, it is equivalent, it is, you are I think going to get rid of 1000 of your thoughts। मतलब जो आपने थॉट इतने हजारों रखे हैं, 1 मिनट की मेडिटेशन से आप 1000 अपने थॉट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। तो ये मेडिटेशन के बारे में जो हमने जिससे सीखा, उनका नाम है फुलटोशी मैडम, और टीम जोरबा को रिप्रेजेंट करती है, और ये रायपुर से हम इनके साथ, सोचिए कहाँ लंदन, कहाँ रायपुर, कहाँ इंडिया का एक छोटा सा छत्तीसगढ़ का सिटी, उससे हम कनेक्ट हुए, और उसके थ्रू हमने ये मेडिटेशन, उनके थ्रू और उनकी टीम के थ्रू हमने मेडिटेशन सीखी, जिससे हमें बहुत फायदे हुए। और एक फायदा तो रिजू ने आपको बताया ही है, और दूसरा फायदा जो मुझे हुआ, जो मेरे अंदर में चेंजेस आए, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मुझे टीवी देखने का, आई एम अ टीवी मैनिएक, मतलब मुझे जब भी मैं घर आता था मेरा रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए, और टीवी देखना मुझे जरूरी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि टीवी से बंदा गम अपने सारे भूल जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, 10 दिन मेडिटेशन में होने के बाद मुझे अपने आप ही टीवी से मतलब हट गया मेरा मन। मैं आज तक अब टीवी नहीं देखा मैंने। अब मेरी वाइफ से पूछ सकती हूँ, वो कभी भी फिर भी कभी इधर उधर एक दो बारी टीवी पे वो भी चले जाती है, लेकिन मैं कभी नहीं जा पा रहा हूँ अभी। मुझे जाने का मन ही नहीं करता। अंदर से क्या चेंज हुआ मेरे माइंड में, आई एम श्योर आप सब इस चीज से एग्री करेंगे, मेरा माइंड इज लाइक अ ट्रेडमिल। मतलब उसके अंदर हर थॉट, एक सेकंड में पता नहीं कितने थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये है वो है, बहुत कुछ हो रहा है अंदर उथल पुथल। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन को अपनाया है, मेरे अंदर वो थॉट का प्रोसेस काम हो गया है। मैंने अपने आप को थोड़ा सा एट ईज रख दिया है, एंड आई फील सो ब्लिसफुल आउटसाइड वर्ल्ड में और इनसाइड वर्ल्ड में। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, कमाई हो रही है नहीं हो रही है। बस मुझे यही है एक बहुत बड़ा सुकून कि हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं दोस्तों। We all are alive and we need to be feeling happy about it, not just get absorbed with all these negativity around us because of this environment that has been created by a so-called virus. So let us now focus our minds, and I will conduct a 10-minute small session for you for the meditation. So जैसे हमने आपको रिक्वेस्ट किए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथों को क्लैस्प कर लीजिए और अपने पांवों को भी क्लैस्प कर लीजिए। Friends, as you close your eyes, आपके अंदर वो जितने भी ख्याल, थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अपना फोकस अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो सांस आप अंदर ले रहे हैं, उस सांस को महसूस कीजिए दोस्तों। Observe the inhaling of that breath and observe the exhaling of that breath. बस यही आपको करना है दोस्तों।
Just keep observing. Let those thoughts, whatever those thoughts are coming in your mind, let them come through. No problem. Just enjoy this silence. Enjoy this bliss. And enjoy this beautiful feeling of solitude. You are the creator of your own thoughts. So stop and relish the creation. I am the best. Observe this breath in and the breath out. Have a feeling of gratitude to all, to your parents, to your brothers and sisters, to your relatives, to those domestic helpers, to those heroes who've been working tirelessly in this COVID times, giving us energy, giving us their support. So thank all the people around you in gratitude. It's very important to have this feeling of gratitude within yourself. I am pure. I am healthy. Just be convinced that I have all the talents. I am eternal bliss. Just relax, friends, and enjoy this beautiful feeling of peace within. Let's have this gratitude towards the Mother Earth, towards all that cosmic energy that surrounds us. Both of us are so grateful to all of you for taking time out of your precious life and shared your time with us, in which we expressed our inner self to you. So we hope we were able to connect with you, and I hope that you're going to continue on this journey of knowing your inner you. So slowly and steadily, the last 30 seconds, please make sure your eyes are still closed. Let us all bow down in gratitude to everything around us. The last 10 seconds, friends. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0. Now, slowly, whenever you like to, you can just take your hands and put them softly on your eyes. And then whenever you feel comfortable, you can open your eyes. अभी जैसे आपने देखा मेडिटेशन, दिस वाज जस्ट द स्नैपशॉट। कहते हैं कि अगर आप 15 साल के हैं तो आपको 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है, और अगर आप 20 साल के हैं तो आपको 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है। सो लाइफ में अगर आप मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में इम्पोर्टेंट बनाएंगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको सच में बताती हूँ, आपकी थिंकिंग इतनी इम्प्रूव होएगी। जो पत्री जी हमेशा कहते हैं लाइफ में 4 तरह के लोग होते हैं, थिंकिंग्स होती हैं। एक होती है डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, एक होती है नेगेटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव और एक मिरेकलस थिंकिंग। जो डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग वाले हैं वो तो कहते हैं लाइफ बहुत बुरी है, जीने में क्या रखा है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। अगर ये होता तो डॉक्टर्स के पास क्यों जाते, हमेशा ये कि दुआ मांगते हैं मुझे अच्छा कर दो। सो लाइफ इज। और जो सेकंड तरह के होते हैं, जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, वो हमेशा कहते हैं मैंने एग्जाम्स दिया तो पता नहीं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो लाइफ भी उनके साथ यही करती है, 50-50 वाली गेम खेलती है। मतलब वो एग्जाम्स तो देते हैं, अगर 50 मार्क्स आने तो 48 एक नंबर से फेल हो जाएंगे। सो आपने पहले अपने आप को माइंड को ट्यून कर रखा था, इसलिए आपको रिजल्ट मिले। पॉजिटिव थिंकर जो होते हैं वो कहते हैं मैंने एग्जाम्स दिया, 100% आई विल गेट सक्सेस। देखिए क्या होता है। जो मिरेकल्स थिंकिंग वाले हैं वो किसी भी रिजल्ट के लिए तैयार रहते हैं। अगर मैं फेल भी हो गया ना, दिस इज माय पैशन, मैं फिर से उठूंगा और फिर से तैयार होऊंगा। तो अपनी जिंदगी में अपने आप को मिरेकल्स थिंकिंग को इंपॉर्टेंस दीजिए। और फ्रेंड्स क्या होता है जिंदगी में, आपको क्या होता है, द बेस्ट लाइफ लेसन इज कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं पहले टीचर पढ़ाती है, फिर आप टेस्ट देते हो। और लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें क्या होता है, पहले आप टेस्ट देते हो, उसके बाद आपकी लर्निंग होती है। और जो लर्निंग होती है वो ऐसे नहीं होती कि सेमेस्टर वाली, एवरी डे यू लर्न समथिंग, हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हो। और उसमें इवैल्यूएशन कौन करेगा, आपको अपने आप को इवैल्यूएशन करना है, लेकिन आसपास के लोग जो आपको जानते भी नहीं है वो भी आपके बीच में टांग अड़ाएंगे, आपको ऐसी एनर्जीज देंगे, अरे तूने किया क्या या क्या, वो भी इवैल्यूएट करेंगे आपको। तो आपको उस लाइफ लेसन को क्या करना है, अगर आप इनर से स्ट्रांग हो तो आप हर की सुनोगे। मतलब किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो ऐसे नहीं 9th क्लाउड पे पहुंच जाओगे, और अगर किसी ने बुराई कर दी तो बस मार डांट पे आ जाओगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, अभी आपको मिरेकलस थिंकर बनना है, अपने आप को इनर से कनेक्ट करना है। सो सुनो सबकी और करो मन की, दिल की अपने मन की। तो दोस्तों हर्डल्स, मेडिटेशन के हर्डल्स जो मैंने महसूस किए अपनी लाइफ में, थोड़े से अपने आसपास के लोगों में, क्योंकि मैंने जो पाया है मैं वो चाहता हूं कि मैं अपने थ्रू, और आपको भी ये खुली फ्रीडम है कि आप जिसके थ्रू, बट अपनी मेडिटेशन को मत छोड़िए। मेडिटेशन इज समथिंग विच यू शुड क्लिंग ऑन टू। जब मैंने अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से इसके बारे में बात की तो मोस्ट ऑफ द पीपल, सबने यही जवाब दिया कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं हंसा इस चीज को लेकर कि जिस चीज को मैं आपको देना चाह रहा हूं उससे आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, और उसके लिए आप कहने कि आपका टाइम नहीं है, तो उसका भी एक सोल्यूशन मैं आपको देता हूं दोस्तों। कि आप सोचो कि आपका टाइम नहीं है, मानता हूं टाइम नहीं है, तो मैं आपको टाइम निकालने का एक तरीका दिखाता हूं। और वो तरीका ऐसा है कि अगर आप सुबह, समझिए आप 8 बजे सो के उठते हैं, तो आज से आप सुबह 7:30 बजे उठ जाइए, और वो आधा घंटा जो आपका टाइम आपकी स्लीप का है उसमें से आप निकाल के उसको मेडिटेशन में लगा दीजिए। सिमिलरली रात को अगर आप समझिए 11 बजे सोते हैं, तो आप 10:30 बजे अपने आप को मेडिटेशन में बैठाकर बिस्तर पर, उसके बाद इमीडिएटली आप जो है सोने में चले जाएं। तो आपने अपनी नींद से वो टाइम अपने निकाल लिया। और बिलीव मी दोस्तों, ये प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लेते हैं, उससे आपको जो आपके अंदर की जो एनर्जी है विच यू गेट बाय स्लीप, because that is equivalent to at least 6 hours of sleep. It is being proved scientifically दोस्तों। और इस एनर्जी से
इस मेडिटेशन से आपको कितना इमेंस बेनिफिट होगा, आपकी क्लैरिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आप अपने आप से अंदर से कनेक्ट हो जाएंगे, उस अपने अंदर के बच्चे से। ओके अब जैसे कि बलराज ने अभी बताया कि साइलेंस, ओके चलिए आप, मैं मानती हूँ इतने बड़े सारे लोग मेडिटेशन में कहते हैं हमें समझ नहीं आता, साइलेंस बैठना तो सीखिए। इसकी आपको एक इम्पोर्टेंट एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक किसान बहुत महंगी घड़ी पहन के अपने खेतों में काम कर रहा होता है और अचानक उसकी घड़ी खो जाती है। बहुत निराश, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, बड़े ढूंढता है, मिलती नहीं। तो कहता है ऐसा करता हूँ, बच्चे बड़े एनर्जेटिक होते हैं जो उनसे मैं पूछता, उनको बुलाता हूँ। तो उन बच्चों को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरी घड़ी यहाँ पे गिर गई है, अगर तुम उसे ढूंढ दोगे मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। बच्चे एक्साइटेड, अरे आज तो रिवॉर्ड मिलेगा इन अंकल जी से। तो वो सारे के सारे कूद पड़ते हैं घड़ी ढूंढने के लिए। बच्चे तो बच्चे हैं, शोर मचाते हैं, तू इधर देख, तू इधर देख, उधर देख, घड़ी नहीं मिलती। सब चले जाते हैं। किसान बड़ा निराश होता है, अपना दरवाजा बंद करने लगता है। तभी एक बच्चा आता है, कहता है अंकल आपने कहा था आप रिवॉर्ड दोगे घड़ी ढूंढने के लिए, मैं एक बार कोशिश करूं? तो किसान कहता है चलो अब इसकी भी देख लेते हैं। वो बच्चे को कहता है यस तू जा और ढूंढ। 10 मिनट में वो बच्चा आ जाता है। तो कहता है अंकल देखिए मैं आपकी घड़ी ले आया। तो किसान बहुत हैरान कि इसको 10 मिनट में कैसे मिल गई, इतनी देर से बच्चे लगे थे। उसने उससे पूछा कि तुमने किया क्या? कहता है कि अंकल मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं बस चुपचाप एक कोने में बैठ गया और घड़ी की टिक टिक की आवाज आने लगी। जैसे ही टिक टिक की आवाज जिस डायरेक्शन में आई मैं उसकी तरफ चला गया। ओके, किसान बड़ा खुश हुआ और उसने उसको रिवॉर्ड दिया। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, एक घड़ी की टिक टिक की जैसी। सो अ पीसफुल माइंड कैन थिंक बेटर देन अ वर्कड अप माइंड. Once in a while, allow a few minutes of silence to your mind. Sometimes all you need is to do is relax and listen. Then only you can listen your gut feeling. Okay. So friends, just take a pause in your life. This is the biggest lesson we are sharing with you today, is that just take a pause. Whenever you feel stressed out, whenever you feel there is turbulence in yourself, just take a pause and do meditation. That, वो जो time आपके लिए अपना, उसको अपनाइए. And thank you very much for giving us this opportunity to having spoken to you all. And now we can invite some question and answers. I think we are spot on time, because that is something, time management, which my wife was very particular about. But मैं यही pray कर रहा था कि जब बोलने पे हो गई शुरू तो ये रुकेगी नहीं. लेकिन भगवान ने देखिए हमारी thoughts, मेरी thoughts जो मैं लेके चल रहा था कि we should be not more than 1 hour 30 minutes, out of which 15 minutes was for question and answers. So if there's any question and answers, we'd love to take from any one of you. Anshul ji can unmute you, or whichever way is. You can raise your hands, please, and if there's anything. Well, it was an excellent session. I have seen myself feeling chills. I've seen myself having a little twinkle in my eye, and you've really, really enjoyed it. And I really hope you can all see wonderful comments that are coming. They loved every bit of it. थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच. रिमेंबर, हम आप जैसे ही हैं, सो कभी अपने आप को नीचा मत सोचना, हमेशा ऑलवेज हाई अबाउट योरसेल्फ. ओके, यू विल गेट रिड ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ. आई एम टेलिंग यू, you have pearls in your hand. Yeah, Bhavna here was a question. Bhavna, we've unmuted you. Yes. Hi, am I audible? Yes, please, you are. Hanji. Okay, first of all, thank you so much for the session. And very honestly, ma'am, I was actually having aloo ka parantha when the session started. I left it open. And hey, cheers to Punjabis. So it was lunchtime, but the moment I heard you, there was something about the way you said it that I was immediately drawn to it. Also, you talked about The Secret, the book. So I have read it a couple of times, and I very strongly believe in manifesting things and then throwing it to the universe to allow it to happen. One thing I want to ask, ma'am, that sometimes we, despite the fact that we have that positive notion in mind and we are manifesting things, we still do not get those things. And that's like a setback for us. And it makes us not believe in what The Secret talks about. So how to reconcile yourself and to bring yourself back to the shape that, it's all right, that sometimes things might just not happen, but you have to have that faith. So anything you could say about that?
मेरा पता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो चीज आप मानते हैं वो मैनिफेस्ट तो जरूर होती है, पर उसको टाइम भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपने घर, जब हम यूके में आए, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि यहाँ घर बहुत एक्सपेंसिव है, और हम उस कैटेगरी में थे जहां हमको पैसे भी ज्यादा देने थे मॉर्टगेज के लिए। सो यस, इट वाज इन माय माइंड कि हमने अपना घर लेना है, सब कुछ करना है, लेकिन उस सोच के पीछे मैं भाग नहीं रही थी, मैंने उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। तो उसको मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। मैंने क्या किया अपनी सोच के साथ, मैं ना भगवान में बिलीव कर, क्योंकि हम सारे इंडियन ऐसे ही पैदा होते हैं, जो चीज मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, तो मैं हमेशा गॉड से, मतलब लगता है लोगों से मांगूंगी तो वो कहेंगे अरे भिखारी है, पैसे नहीं है अपना घर लेने के लिए। सो whom do I connect? जब पेरेंट्स नहीं आपके होते तो आप अपनी इनर से, मतलब गॉड क्या है, योर इनर सेल्फ, राइट? यू टॉक टू योर इनर सेल्फ। तो मैंने सीधा ये बोला कि अरे भगवान, यहाँ तो सुना है माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है कि मुझे कोई इस घर के लिए सपोर्ट करेगा। जिस घर में मैं रह रही हूँ, दिस इज द शो हाउस बियॉन्ड माई रीच। आप मानोगे, जब इस घर में दैट थॉट आई पुट इट माई हेड, उसके लिए दुखी हो, मतलब हर एक माँ चाहती है, एक हस्बैंड चाहता है उसका घर हो, उसके बच्चे अच्छी जगह पे रहे, और मैंने उस थॉट को, आप मानोगे, इस घर का प्राइस जिसमें हम रह रहे थे 40,000 पाउंड लेस हो गया। दिस इज द मेजर, मतलब अपने ये बिलीफ जो है, ये थोड़े टाइम के लिए अपसेट मत हो, जो आपका ड्रीम है थोड़े टाइम के लिए इसे छोड़ दो, और जैसे जैसे टाइम मिले आपको जरूर इच्छा पूरी होगी, बिकॉज योर कॉन्शियस इज क्लियर। और जो अगर चीज मिल नहीं रही तो सोचो छोड़ यार, कोई और है दुनिया में, 10 लोग बांसुरी बजाते हैं, ये मास्टर ने मिला तो दूसरा सही, राइट? You know what you need to understand is that you need to have a complete faith within yourself and be patient about it, because sometimes we get worked up, you know, कि मैंने, you know, we are time bound again, you know, कि ये चीज मैंने manifest की थी, ये चीज मैंने सोची थी, नहीं हुई, again, you know, go back to the coin, you know, कि नहीं हुई, there could be some reason for it, okay? So have that confidence within yourself as a person that, you know, things would fall for you. You are God's best creation for yourself. You know, you are unique. There's nobody like you, and nothing will go wrong for you. Have that self-determination within yourself. एंड भावना, जिंदगी को, इस चीज को भी देखो कि मतलब समझे, एक माँ के लिए ना सबसे, बच्चों को देख के खुशी बड़ी होती है, लेकिन जब रात को उठना पड़ता है ना, तो बड़ा दिल करता है हाय रिमोट कंट्रोल हो, जल्दी बड़े हो जाए। ओके, सो लाइफ इज नॉट, पेशेंस इज रियली की थिंग इन लाइफ। ओके, I hope I answered your questions. Yes, Yeah, definitely. And I have to say this, that we keep hearing these things, but it's very important to be time and again reminded about what the whole absolutely was about today. Yes. Any other question, please, from anyone? I believe Shreya had a question. She says, what when luck does not favor us? What is luck? First of all, I want to ask Shreya, what is luck? Shreya, When you do not have self-belief, you उसको आप luck का नाम दे देते हो। Try तो करो, self-belief is the most important thing. Luck आप अपना खुद create करते हो, अपने action से। The law of attraction is Yes. what you need to understand. There is अपनी nothing सोच से। called luck. अपनी सोच इतनी बुलंद रखो कि वो जो चीज अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कभी ना कभी आपकी तरफ आएगी. The law of attraction. Believe me, I'm not, you know, Anshul is a witness to this. Anshul ने हमसे कहा करीब अभी 15-20 दिन पहले या मे बी 1 महीने पहले कि, you know, Mr. Balraj, you should come to our, you know, institute and talk to our students. And you know, I said नहीं यार, हम कोई थोड़े speakers हैं, हम कोई बड़े वो कुछ, you know, ऐसा कुछ नहीं है, we're just an ordinary people. But he said no, you have a convincing power, and you know, the students would love to listen to you all and see how that thought process of Anshul got manifested so quickly. I believe Anshul himself confessed to the fact that this particular session was supposed to be held on the 10th of August, and suddenly he calls us up on 31st night and tells us, sir, can you do this for us on the 2nd, which is a Sunday? So, you know, we were spot on. So हम लोग, you know, like we had no words to kind of even express कि हाँ करें या ना करें या क्या करें. But since the manifest of thought that Anshul had in his mind, that convinced the whole thing to happen, to materialize it so quickly. So that is the power of, you know, self-belief in yourself.
एंड श्रेया, रिमेंबर इन लाइफ, अगर समझिए आप किसी उस हर्डल को फेस कर रही हैं, दैट वाज, यू आर चोजन फॉर दैट टेस्ट, ओके। और जब टेस्ट में मेरा लक बड़ा अच्छा था, टेस्ट बुरा हो गया तो मेरा टेस्ट लक बड़ा, नो, यू आर परफेक्ट एवरीथिंग, बस वो टाइम ऐसा नहीं था, तुमने शायद उसमें वो इतना 100% नहीं किया था, सो जस्ट लीव इट, लक इज व्हाट यू मेक इट योरसेल्फ, ओके, योर सेल्फ बिलीफ, योर थॉट्स। There's one question. So Shubham wants to ask, sir, what were your thoughts about a plane flying above and the pilot course that you talked about? You said you had 35 years experience professional. I don't believe this. Believe me, I was actually waiting for this to be, you know, जो मेरे दिमाग में था वो पायलट का क्या कनेक्शन है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बलराज से पहले मैं ना सब जो यहाँ पे बैठे हैं उनको 100 आउट ऑफ 100 दूंगी, बिकॉज कहते हैं टीचर्स बोलती जाती हैं और स्टूडेंट्स उसका 5% लेते हैं। आज प्रूफ हो गया। वेल डन ऑल ऑफ यू, वेरी गुड फॉर गुड लिसनिंग। सो जैसे यू नो रिजू ने कहा, मैंने भी अपनी लाइफ में एक पायलट सोचा था कि मैं पायलट बनूंगा जिंदगी में। तो आफ्टर 34 years of working in this industry of hospitality, I got so fed up because the stress, ये जो दिमाग में स्ट्रेस हमेशा की लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल इन द हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड इज बिकम सो हाई। हर बंदा सोशल मीडिया, थैंक्स टू द सोशल मीडिया, एक अपने मोबाइल से आपकी फोटो खींच लेता है आपके खाने की और कहता है स्क्रैप, बिकॉज वन मैन्स फूड इज द अदर मैन्स पॉइजन, इजंट इट? तो एक खाना जो किसी के लिए बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, किसी के लिए बुरा बन जाता है और वो सोशल मीडिया पे जाके कह देता है जी ये चीज गलत थी, और फिर उसको लोग जो है नेगेटिविटी को लोग ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और ये चीज मुझे इतनी ज्यादा दुख देती थी क्योंकि मैं सोचता हूं कि जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इतने पैशनेट अपनी लाइफ, अपनी इस जॉब से, इस प्रोफेशन से। आप किसी होटल में जाइए, वो मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे, आपको खिलाते हुए सेवा भाव से आपको खिलाएंगे, बट लोग क्या, इंस्टेड ऑफ showing gratitude to them, वो उनके खिलाफ कंप्लेंट्स और कि भाई फ्री फूड मिल जाए या फ्री वाउचर मिल जाए या कुछ फ्री में मिल जाए, हमें फ्री स्टे मिल जाए, तो लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो दिस थिंग मेड मी फेड अप सो मच दैट एक्चुअली आई क्विट माई ट्रेड 4.5 years ago। 4.5 साल पहले मैंने अपना काम छोड़ दिया। एंड देन माई ओन सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ दे सेड वी हैव अ कॉन्सेप्ट इन माइंड। तो उन्होंने एक टेस्ला गाड़ी का एक बिजनेस स्टार्ट किया और जिसमें उन्होंने मेरे को साथ में पार्टनर बनाया उसमें, और कहा कि भैया ये आप हमारे साथ इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कीजिए और इसको। तो मैं सोचने लगा कि एक जनरल मैनेजर होटल का सडनली एक इतना बड़ा रुबाब, टाई, कोट, ग्लैमर, वो ग्लैमर वर्ल्ड से निकल के मैं ड्राइविंग करूंगा गाड़ियों की। तो ये छोटा थॉट था, नेगेटिव थॉट था, लेकिन उस थॉट को कैसे मैनिफेस्ट हुआ मेरी लाइफ में, कैसे उसको पॉजिटिविटी में मैंने कन्वर्ट किया थ्रू द पीपल अराउंड मी। माय ओन चिल्ड्रन टोल्ड मी, डैड नथिंग इन दिस लाइफ इज स्मॉल, एंड व्हाट आई रियलाइज दैट यस, कोई काम छोटा नहीं होता दोस्तों। और वो काम में आज मैं इतना खुश हूं कि उस काम से I am a proud owner of a chauffeuring company now, which again thanks to those, my sister and my brother-in-law who actually kind of, helped me to launch this whole business up. It was their business and suddenly manifest ऐसा हुआ कि उन लोगों ने अपनी तरफ से ये business मुझे दे दिया। But yes, in this lockdown, my entire business got, messed up. So what I'm saying, coming back to the pilot story. तो देखिए एक पायलट क्या करता है। एक पायलट एक साथ 300 से 400 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाता है, और जब वो बाहर आके खड़ा होता है तो लोग रिस्पेक्टफुली उसको थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू, आपने हमें अपनी डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंचाया। तो आज मैं वही कर रहा हूं दोस्तों। आई एम नॉट अ पायलट इन द स्काई, आई एम अ हाईवे पायलट। मैं अपनी सोच से उन लोगों को ही वापस उनकी पायलट, जो मेरे दिमाग में एक बचपने से था कि मैं एक एयर पायलट बनूंगा, तो मैं एयर पायलट तो नहीं बना, लेकिन बना जरूर पायलट। What I'm doing today is I'm navigating the best of the people, मतलब the most elite corporate clients are my clients who call me up and say, Balraj, can you please drop us? And I do airport runs for them. I do trips for them. And this is my chauffeuring business, which is giving me so much of happiness now. And इससे इतनी ज्यादा खुशी मुझे मिल रही है because I'm able to spend more and more time with my family, and that smile which was there in my life was lacking. वो 35 साल से गधे की तरह जो मैं काम कर रहा था, किए जा रहा था, इसमें मेरा मन भी नहीं लगता था।
ऑनेस्टली मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मुझे दुख होता था कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, अपनी बीवी के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा। आज वही टाइम मुझे भगवान ने मेरे एफर्ट्स के लिए, मेरे हार्डवर्क के लिए मुझे ऐसा दिया कि अब मैं पूरा टाइम अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, अपनी बीवी के साथ रहता हूँ और खुश रहता हूँ। और मैं घर से बाहर रहती हूँ क्योंकि दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती। No, it's a joke. So And thank you, Shubham, for bringing in this question. I'm so delighted to answer this. And I think there is Megha wants to talk to you. I'm just yes. unmuting. Ji. Megha, I have requested you to unmute yourself. Yes, Megha. Hello. You can speak Am I now. audible now? You're not Yes. audible. Just speak a little louder. Okay. Hello, everyone, and hello to Mrs. this is- Megha, could you please, yeah, we can't hear you, or we can just mute ourselves maybe then. Yeah, please try. Okay. Am I audible now? Yes, you are very much. Thank you. Okay. Hello, Mr. and Mrs. Kapoor. And Hi. hello, Hi. everyone. It's really nice to meet you, see you, and hear you. Virtual meeting ही सही, but it was really great session. Thank So you. the time जब अंशुल सर ने बताया कि हम motivational session रख रहे हैं, I mean I was really questioning myself क्योंकि अब मैं CAT preparation कर रही हूँ अपनी. Okay. So I had Lovely. really Wonderful. I had doubts and questions कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, 4 months are left or what not things. तो जब मतलब सर ने बताया कि motivational session रख रहे हैं, and the time you started speaking, I was smiling throughout the session. Truly, ma'am, I was really smiling. Thank you, अब कोई Megha. That's what I want. Yeah, I was really smiling. और अभी भी मैं smile कर रही हूँ. I hope you can feel in my voice. Yes. We can feel. As I said, this is heart-to-heart connection. As you can see, there are Yeah. tears coming down my eyes. You know, that is not because of anything else, because of that, you know, that gratitude we are, you know, having towards you for having given us this opportunity to have spoken to you. Exactly, sir. I also had tears throughout the session, and in fact now also. But you guys really are power couple. I want to say only this, Mr. and Mrs. Anshul sir and Priyanka ma'am, वो भी power couple है ना, आप भी power couple ही हो. I only want to say this. Thank you so much. Thanks a lot, Thank you. Megha, and good luck. You will definitely clear your CAT test. 100%. Believe in yourself. Thank you, ma'am. Thank you so जब much. मेरे जैसे गधे बन सकते हैं, तुम तो बड़े clever लोग हो. Thank Yes. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes. So we have a question from Prabhu also. So Okay. Yes, please, Prabhu. I want to ask whether taking decisions from heart makes us weak. No. This is again your thinking. अगर तुमने पहले ही सोच लिया कि तुम्हारे दिल का जो उससे डिसीजन लोगे वो वीक है, तो तुम वीक हो. So no, it's not. You have to, whatever the decisions you take in life, you need to have bear in mind कि जो भी consequences आएंगे, आपको उसको accept करना है. आपको कैसे पता है? माइंड मुझे कह रहा है कि आधा ये जो प्रिया बैठी है ना, ये ठीक लड़की नहीं है. मेरा माइंड ये कह रहा है, वैसे जानती थोड़ी हूँ. पर दिल कहता है इस सेशन में जा, ये हंस रही है, इसको कनेक्ट तो करके देख. सो दिल की बात कनेक्ट. माइंड तो बड़े सारे परसेप्शंस लेता है किसी के बारे में. सो जब हम दिल से कनेक्ट होते हैं, तभी तो किसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, कितने सारे लोग अजनबी लोगों से हम मिलते हैं और हमारा उससे कनेक्शन हो जाता है. पहले बॉडी लैंग्वेज से, मैंने जैसे अभी आपको द रीजन सुजन बॉयल को दिखाने का यही था, बॉडी लैंग्वेज से हम बड़ी सारी चीजें करते हैं. जब आपका दिल का कनेक्शन होता है, आपकी 100% ऑनेस्टी उसमें दिखती है, then decisions will definitely in your favor. Prabhu, And I think, yes, Prabhu. Prabhu, if you want to speak, आप बोल सकते हो बच्चे. I have unmuted you. I guess Prabhu is shy to speak. Yes, प्रभु. पर कई बार होता है हमको spontaneous decisions के लिए ना माइंड की सुननी पड़ती है. जब बड़ा इमीडिएटली आपको एक्शंस लेना है, पर जब आपकी लाइफ में मेजर एक्शन लेने हो, जैसे शादी करनी हो, गर्लफ्रेंड पटानी हो, सो यू नीड टू थिंक फ्रॉम योर हार्ट. ओके. यस, माइंड कहेगा बड़ी सुंदर लड़की है, पर बाद में 2 दिन के बाद ही, 2 महीने के बाद बोलोगे नो, इनफ. सो इसलिए मैं कहती हूँ स्पॉन्टेनियस डिसीजंस कई बार हम लेते हैं तो माइंड से लेते हैं, पर अगर लाइफ में बहुत चैलेंजिंग, जो आपने करियर का फैसला करना है, दिल से कीजिए. देन दिल, दिमाग और हाथ, एक्शंस. सो वी ऑलवेज से 3H in my life, which is hand, heart and head. जब इन तीनों का कनेक्शन होएगा, आपका कोई एक्शन बुरा नहीं होएगा. जब आप काम भी करते हो, मैं भी करती हूँ, कई बार स्ट्रेस होता है मुझे काम करने में,
तो जैसे ही गड़बड़ होने लगती है, मैं अपनी स्पीड लिमिट से ज्यादा जाती हूँ, तो मैं चेक करती हूँ कि मेरी हेड, हार्ट और हैंड तीनों में कनेक्शन बराबर है, अलाइनमेंट है, तो देन आई विल कम बैक ऑन माय अलाइनमेंट में आ जाती हूँ. Prabhu, I hope you like it. I really hope you've understood what ma'am just wanted to say. Okay, Yajur wants to. Yes. Yajur. Okay, Yajur. Yes, he said how should you deal with the situation where the outcome is not the one you wanted. Okay, लाइफ में बहुत सारी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमेशा हम चाहते हैं कि लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दूसरे लोग भी हैं. जो चीज मैं चाहता था मुझे नहीं मिली, देयर इज अ रीजन फॉर दैट. रादर देन क्राइंग ऑन द स्पिल मिल्क, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. उस टाइम पे सोचो ये मिलनी नहीं थी, पर अगेन अगर ये पैशन था तो उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके जाओ तो फिर मिल जाएगी. पर जो मैं चाहता हूँ, मेरा हस्बैंड में 24 घंटे मुझे मेरी तारीफ करता रहे, गाने गाता रहे, अनिल कपूर बन के मिले, इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ. सो व्हाट यू वांट, इट इज नॉट नेसेसरी you will get it. You need to understand with your inner self कि तुम्हारे में इतनी है पावर, इनर पावर है कि जब बैटरी वीक हो गई, आउटर टर्बुलेंस आने, टोर्नेडो आने शुरू हो गए, मैंने उसे कैसे लिया. So situations are not in our control. Life is a change. You need to accept winter, spring, summer, all these. I see Sushila Bhakar here. Oh my God, I don't believe this. सुशीला भाकर इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. मेरी गर्लफ्रेंड थी बेसिकली. गर्लफ्रेंड मतलब फ्रेंड, मतलब जो लड़की होती है फ्रेंड होती है. और इस लड़की के साथ मेरा सोल कनेक्शन है. बिलीव मी, इस लड़की के साथ और काफी लोगों के साथ मेरा सोल कनेक्शन है. और ये लड़की तो खास मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है. तो सुशीला, how come you are here? My God, what a surprise! I am so blessed, and both of us are blessed actually. Yes, exactly, सुशीला दीदी. Means मैं आपका ये बता, इनके साथ मेरा बहरीन का नाता है. अगर किसी ने हुलीगन बनना हो तो मुझे सुशीला दीदी ने सिखाया. I was a very गांव की गोरी. So she taught me so many things, life skills. बिल्ली से शेर कैसे बनना है, she taught me. Are you there or are you not there? Yes, she is still here. Okay, I hope Yajur, I have given your answer. Oh yes. Is there anybody else for any questions, please? Shreya had the same question. Shreya had the same question, but I guess it has been answered. It was the same question. Okay. It's not what we want. So I hope, Shreya, your question is answered. If you still want to ask it again or something else, you can put it here. Shreya, are you there? And we're so happy seeing all these messages. Great. She says that I got it clear, and all these messages which say that we want to hear you for so long. We really don't want. They say, I wish I could listen to you more. We feel so motivated, and thank you. Well, thank you so much. It's been, as I said, it's a soul connection with us. So this time suits us actually. So in case in any future time में कभी भी आपको Sunday afternoon में लगे कि कुछ बोर हो रहे हैं, चलो ये बुढ़ा बुढ़ी से कुछ बातें सुनते हैं, तो दिस बुढ़ा बुढ़ी क्या होएगा, मैंने जैसे कहा मैं बड़ी जवान. Yes, I never call myself also Buddha. So anytime if you need any kind of chat, even privately, if you like to, you can kind of get in touch with Anshul, and I'm sure he'll be able to kind of send you our contact details, and we can always get in touch. And if we could be of any help to you on a personal level, we'll be more than happy and honored to be of any help to you. And last but not least, मैं एक चीज बोलूंगी, लाइफ में बुक्स को जरूर पढ़िए. जो आपके मेरी लाइफ में जो है स्वामी विवेकानंद, दो ही इज नॉट नो मोर देयर, बट उनसे ही वाज द पर्सन जिन्होंने वेस्टर्न और इंडियन कल्चर में हमारी आउटलुक चेंज कर दी. द स्नैपी फीलिंग, जब आपको लोग छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, विवेकानंद हैज आंसर फॉर एवरीथिंग, हाउ यू नीड टू रिस्पॉन्ड ऑन दोज सिचुएशंस. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम. ही इज फॉर मी एवरीथिंग. विवेकानंद एंड फिर अभी छोटे छोटे मतलब फेसबुक के जो है उनसे सीखिए कि कैसे यंग लोगों ने अपनी जिंदगी में अचीवमेंट्स की. मार्क ज़ुकरबर्ग. यस, एंड रतन जी टाटा, बिग फैन ऑफ हिम. मैं इन मतलब अपना टाइम टेड टॉक्स में और इन लोगों की इंस्पिरेशंस की लोग कैसे बड़े बनते हैं, मैं वो सीख के मैंने अपना टाइम, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं टीवी देखती हूँ, बट दैट्स नॉट ट्रू. आई लव लिसनिंग टॉक्स, पॉजिटिव टॉक्स, और उन लोगों के साथ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे गॉसिप करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है. We have a question here, Riju, and it says from Ashma. Ashma says that what if we have taken some wrong decision? How to deal with it now?
स्माइल इज द ओनली की। हैप्पीनेस जो हो गया सो हो गया, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लिव इन प्रेजेंट माय डियर। जो हो गया, एग्जैक्टली। गिल्ट को तो कभी अपने अंदर लेके ना, गिल्ट ऐसा कीड़ा है जो पूरी पौधे को खा जाएगा। अगर गिल्ट लगे उस पौधे को काटो, आगे बढ़ो। ओके, यस। So whatever wrong decision which you think is wrong for you, just forget it. उससे सीखो, उससे सीखो। Live in the past, Ashma. Let's start living in the present, because this present moment is what matters. So if you've taken something wrong, forget it. Don't worry. Move on from today onwards, from right now onwards. Move on. Nothing is wrong and right. This is all our thinking. Yes. Okay, वो तुम्हें lesson मिलना था, इसलिए वो wrong था. That's it. So, you need to remember this coin example of mine, which I told earlier, right? कि जिंदगी में अगर कुछ गलत पड़ गया तो फिर से सिक्का उछाल लो, मिल जाएगा। और कुछ ना कुछ जो आप हासिल करना चाहते हो, आपकी थॉट्स प्योर होनी चाहिए। आशमा, you will get it. Believe me, you will get it. And you'll call me back and tell me कि हाँ मुझे मिला। Yes. So have that faith with yourself, within yourself. Because मैंने जैसे आपको कहा कि आप जैसा कोई दूसरा बंदा नहीं है इस सृष्टि पर। You are the most unique person, आशमा। और पता है ये चीज जो है ना, मैंने अपने बच्चों से सीखी। मेरी बेटे, आज मैं जो कुछ, मुझे बस शर्म नहीं आती, आज की डेट पे भी मेरा प्रूफ रीडर मेरा बेटा है। किसी एक्सेंट कैसे बोलना है, मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके, सब कुछ मैं अपने बेटे से सीखती हूँ। और बेटी लाइव एग्जाम्पल मेरे आगे। आज मैं सक्सेसफुल टीचर हुई अपनी बेटी के कारण, मैं उसको पूरा क्रेडिट देती हूँ। शी हैज सम लर्निंग डिफिकल्टीज, और मुझे याद है जब वो छोटी थी और मैं उससे यही कहती थी कि you don't need to compare yourself with your brother. He's very good in academic, but unfortunately हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली हमेशा जजमेंटल होती है। तो एज अ मदर मैंने कहा, मैं तेरे साथ तो हमेशा नहीं रहूंगी, बट आई विल गिव यू द टूल। व्हाट इज दैट? योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तैरना तू ही सीखेगी। जब तुझे लोग कहेंगे तुझे ये नहीं आता, तुझे उसे फेस करना है कि तुझे कैसे नहीं आता। एंड वो पता है, अभी उससे मैंने छोटी छोटी बातें बड़ी सीखी हैं। अभी वो बड़ी सक्सेसफुल है अपनी यूनिवर्सिटी, उसने जॉब अपने आप ढूंढी, बड़े सारे लोगों को इंटरव्यू, शी इज फुल ऑफ लाइफ। उसने अपने चैलेंजेस को, मुझे याद है एक बार मैं उसकी मीटिंग में गई थी, तो मुझे उसकी टीचर बोलती है कि आपकी बेटी ना, आई थिंक अगर ईयर 7 तक भी कर ले तो ठीक है। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए बेटा जी होएगा, गोरों के देश में रहते हो, ईयर 7 तक, हमारे इंडिया में नहीं ये चलता। उठ कृपा और चल दौड़ना सीख। ओके, बस एक चीज मैंने कर दी कि जो लोगों को 20 मिनट लगते हैं ना, तुम्हें 1 घंटा उसे पढ़ने में लगेगा। इफ यू आर हैप्पी टू कंट्रीब्यूट योर टाइम टुवर्ड्स योरसेल्फ, यू आर रेडी, वर्ल्ड तुम्हारे साथ है। वो जॉब 16 साल की उम्र में, मेरी जब शादी हुई थी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जितनी मेरी बेटी ने 16 साल की उम्र में कमा लिए। अपनी बलबूते के ऊपर जॉब्स मिली उसने, लोगों बिग लोगों की इंटरव्यूज ली। और वो मुझे एक चीज हमेशा कहती जब भी मैं डाउन होती हूँ ना, मैं मिरर के आगे खड़ी होकर कहती हूँ, आई एम द बेस्ट, God made me perfect, and I'm happy to take all the challenges of my life. Failures is nothing for, उसकी डिक्शनरी में ये एग्जिस्ट नहीं करता। रोती भी है, यहाँ पे कितनी बुली, कितनी चैलेंजेस मेरे बच्चों ने देखे, बट वन थिंग, हम तुम्हें दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, तुम्हें तैरना आना चाहिए। सो वी आई एम प्राउडली से वी आर वेरी सक्सेसफुल इन आवर पेरेंटल लाइफ ऑल्सो। मेरे बच्चे, मैंने कोई जो टीनेजर की प्रॉब्लम होती है कुछ नहीं की कुछ दारू सिगरेट कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कहती जो कर रहे हैं वो बुरे हैं, बट आई डिडंट फेस दो चैलेंजेस। फेसबुक का चैलेंज, मेरे को याद है यजुर 18 साल का था जब मैंने उसे मोबाइल दिया। सो मतलब वो चीजें कोई जरूरी लाइफ में इतनी मैटर नहीं करती, आपका कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे आप हो वैसे आपके साथ दुनिया भी चलेगी। दैट्स इट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू अस। एनीथिंग एल्स? And one more request to everyone. Do give us the feedback of this session on wherever you got the information from, WhatsApp, Facebook, Instagram, your groups, wherever. Okay, do give us the feedback. Have you recorded this session, by the way? I mean, is this recorded? Okay, good. So could you be kind enough to send us? Yes. We'll be putting it up on our YouTube channel also. So for all of those who have not seen our YouTube channel yet, do subscribe to our YouTube channel. We post our own videos also, and such videos are the sessions that we conduct. So do search for Aptiguide Jalandhar or Aptiguide on YouTube, and you'll find our channel there. Do like it.
there's this person, Shubham has said, enjoy the sad phase of life so that you become more happy when you get success. The graph of happiness will move like E raised to power X, yeah. Thank you, Shivam. Thank you you for your energy. Thank you for your feedback. And everybody loved it. We're so glad that you all loved it, and we really, really, really want to thank both of you. We are so happy that it was such a hit session. It made us happy, cry, feel relieved, and so many feelings all at once. Thank you. Thank you, Priya. Thanks a lot. Thank It's you, our Anshul. honor. Thank you, Anshul. Thank you very much. And thank you everyone for listening. Dil se dil ka connection wali feeling. That's what Shruti Verma says. Oh, very nice. Shruti Verma, I must talk to you about Shruti Verma. So Shruti Verma is our soul connector. You know, she does meditation with us, and we all do collectively meditation. She lives in Delhi, and we got connected to her through our meditation classes. And again, you know, that connection जो होता है ना एक soul का soul के साथ, वो हुआ है इनके साथ. और हमको ऐसे लग रहा है कि हम एक दूसरे को एक जन्मों से जानते हैं. Yes, you know, true. so such a beautiful feeling, you know, to somebody who was never known to us. It suddenly becomes such an important person of our life. So this is the, I think, learning lesson for everyone. जब भी आप दुनिया में कभी भी जाओ ना, अकेले, मतलब हम यहाँ कौन थे कि कोई फ्रेंड्स नहीं है, अकेले आप हर चीज को पा सकते हो अगर आपके थॉट, अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आपके थॉट्स करेक्ट है, आपका हर जगह पे, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे चीख मारूं 10 लोग मेरे लिए खड़े हो जाएं, मतलब ऐसी दुनिया क्रिएट कर लिया. सो जहां पे भी जाओ एक वाइल्ड प्लांट की तरह एंटर कर जाओ, तो अपने आप पौधे उगने लगेंगे आपके साथ साथ, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. Sajjan Sangati is very important, friends. You know, the group of people that you move around with the nice people, motivating people, and you know, your life would change. You know, your thought process would change. Very, very important to, you know, understanding that Sajjan Sangati. एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ लास्ट में जाने से पहले कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक आदमी ने ना एक बहुत बड़ा एक खाने का, मतलब हमारे होटल्स की बात बताता हूँ कि एक बहुत बड़ी हांडी लगाकर उसने एक हलवा बनवाया और उसके चारों तरफ 20 लोगों को, जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स थे, उनको सबको बुलाया और उनके हाथ में एक चम्मच पकड़ाया जिसकी लंबाई अबाउट 1 मीटर की थी और उसने कहा कि ये जो हलवा मैंने बनवाया है इसको अब आप लोग खाइए. तो हर आदमी ने वो चम्मच से हलवा लिया और उसको खाने की कोशिश की. एंड बिकॉज वो चम्मच इतना लंबा था, वो कोई भी आदमी उसको अपने मुंह में नहीं डाल पाया. हर आदमी 5 मिनट तक ये सोचता रहा कि हम इस हलवे को खाएं कैसे. अब बॉस ने कहा खाना भी है और इसको छोड़े कैसे, क्योंकि हलवा भी इतना स्वाद है, तो हम खाएं कैसे. एंड देन सडनली द बॉस सेड, why don't you guys start feeding each other? मतलब हर एक आदमी ने अपने क्रॉस करके अपना चम्मच सामने वाले को खिलाना शुरू कर दिया. तो together everyone achieve most. That is the actual meaning of team. Yes, your inner power, your inner thoughts. तो ये मत सोचना कि आप अकेले हो दोस्तों और इस अड़चन में कैसे है. जब आप एक अच्छी संगत में होगे ना, that power of that team will get you across to your goal and you will achieve it. So thank you very much for everybody once again, and I think we've crossed our limit until now. Yes, or apologies for that. Apologies for that, or and we have to tell this. Usually, whenever we conduct sessions and all of these things, the moment we say okay, we're wrapping up, after hearing this, a lot of students would leave the session, and you won't even imagine. There's barely, and anybody who's left it, they've left a WhatsApp message. It's because of some emergency, we'll have to leave. Right now, there are 40 participants with us who don't want to leave. They don't want we would just want to request every one of you, if you could put your, actual, feedback on us, our performance, because this is the first performance for us. Yes. We never thought, we could actually go on talking to you people and, convince you about what we are trying to say. You could connect with each other. So please give us that feedback, that were we able to convince you or to connect with you. That is very important for us too. It's a learning lesson for us. And, as you know, we all learn in life. So हमारे लिए एक बहुत अच्छा learning lesson होगा. There's this wonderful comment. Sanat says, your second Sandeep Maheshwari. Oh my God! Oh my God! वो तो बहुत बड़े गुरु हैं यार. वो तो बहुत बड़े. But yes, I'm very inspired by that fellow. Yes, very, very inspiring person.
Anyways, thank you, Priya and Anshul. Thank you once again, Thank Anshul you. and Priya. Thank you. Thank you. And long live OptiGuide and long live its glory. Hail. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you you. so much. Okay. Okay. Thank you. Okay. Bye-bye, everybody. Participants also for being with us for so long. I mean, it has almost crossed the time that we had kept. But But then we were very happy that you all liked it. And even Shreya says it was like what my heart needed to hear to give up on the struggle going inside me. So thank you so much. Yeah, if they were able to bring about even 1% change, honestly, our mission is accomplished. If they could bring any change, that's really great. Okay. Thank you. Bye-bye, guys. Bye. All right, much, guys, everyone. everybody, thank you so Bye. much. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Bye.